let's begin. Yesterday we discussed one rule of adjectives, which was Obshicom rule, and we discussed different categories of adjectives belonging to this acronym called Obshicom, in which there was opinion, there was shape and size, age, color, origin, material, and even we discussed purpose. And then after that we did different degrees of adjectives. Where to put ER and EST, where to put more and most, उस पे हमने एक exercise भी की थी. Then we did much and many determiners हमने किए थे, much versus many, some versus any, and finally we did few, a few, little, a little, and I think I gave you the exercise as a homework. So we'll be discussing that exercise first, and then we'll continue with, we'll be starting with tenses today. So उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि I'm sure tenses आपने पहले भी पढ़े हैं. So we'll quickly. Yes, ma'am. So I'll be taking the names and you please answer it. So this was the exercise जिसमें हमने कल discussion की थी few, a few, little, a little. First पहली जो bifurcation थी वो ये थी कि few, a few जो है वो countable nouns के लिए यूज होता है, little, a little जो है वो uncountable के लिए यूज होता है. Second bifurcation ये थी कि few जो है वो नेगेटिव सेंस में होता है, a few जो है वो पॉजिटिव सेंस में होता है. ठीक है, a few means at least some, few means the smallest number. इसी तरीके से little means at least little means the smallest amount, and a little means at least some. So little जो है वो नेगेटिव सेंस में हो गया, a little जो है वो पॉजिटिव सेंस में हो गया. So let's begin. Hamza, let's start with you. The first one. As he has dash books, he isn't able to study. As he has few books, he isn't able to study. Very good. As he has few books, he isn't able to study. Yes, M. Aman, will you have dash T? Will you have little T? Will you have a little tea? ठीक है, यहाँ a little क्यों है और little क्यों नहीं है? देखिए, जब आप किसी से चाय का पूछते हो या किसी खाने का पूछते हो, आप ये तो नहीं कहते आप चाय तो नहीं पियेंगे, आप कहते हो आप चाय पियेंगे, आप पॉजिटिव सेंस में उससे पूछते हो. ठीक है, अगर आप कहते हो आप चाय तो नहीं पियेंगे तो आप तो फिर इतनी हॉस्पिटैलिटी नहीं शो कर रहे. ठीक है, सो आप कहोगे विल यू हैव अ लिटिल पॉजिटिव. वेरी गुड. उमर दराज, नंबर 3, ही इज वेरी इल, there is dash hope for him. He is very ill, there is a little hope for him. बेटा ये याद रखिएगा, उसने पहले बता दिया कि he is very ill, बहुत ज्यादा वो बीमार है, तो नेगेटिव सेंस में आप यूज करोगे. अगर आप कहते हो a little hope, तो फिर इसका मतलब है कि वो इतना बीमार नहीं है, उसमें अभी भी बच सकता है वो, लेकिन उसने पहले ही कंफर्म कर दिया कि he is very ill. ठीक है, सो उम्मीद कम है, तो कम के लिए आप a little यूज करोगे या little यूज करोगे? उमर यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? उम्मीद कम के लिए little यूज करेंगे. little यूज करेंगे. सो little आएगा. he is very ill, there is little hope for him. अगर आप यूं कहते हो ना, he is recovering, recovering means वो बेहतर हो रहा है, there is a little hope for, तब आप पॉजिटिव सेंस में कहोगे. यहाँ पे आएगा little hope for him. जी निम्रा, number 4, there are dash apples in the bowl, help yourself to some. A few apples. Very good. There are a few apples in the bowl. Help yourself to some. Help yourself is basically phrase तब इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप कहते हो कि आप खुद वहां से जाके you're most welcome to have something. ठीक है, help yourself का मतलब है कि feel at home, आप खुद जो हो जाके खाना पीना ले सकते हो. Number 5, जी Eamon. Dash people study Latin nowadays. How few people study Latin nowadays? Keep in mind, Latin एक ऐसी लैंग्वेज है जो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई है, तो फिर आप इसको किस तरह से कहेंगे? Eamon? Few people study Latin nowadays. Few people study Latin now, क्योंकि Latin आहिस्ता आहिस्ता it's no more, people are not studying Latin anymore. So few people means बहुत कम लोग जो हैं Latin पढ़ रहे हैं. अगर मनी की जगह होता रुपीज, डॉलर्स, पाउंड्स, ठीक है, तब आप few यूज करते. ठीक है, सो लिटिल, अ लिटिल में से रिदा क्या यूज होगा यहाँ पे? He can't afford it as he only has 10 little.
Little money left. Very good. Let me explain this one a bit. He can't afford it as he only has little money left. वो चीज ये afford नहीं कर सकता because उसके पास बहुत कम money है. ठीक है. Now हमने यहाँ पे few क्यों नहीं use किया? Because money in itself is uncountable. हाँ, अगर आप कोई currency use करते हो यहाँ पे, जैसे कि dollars use कर दिए, rupees, तो फिर इसको कैसे कहेंगे? He can't afford it as he only has few dollars left या few rupees left. ठीक है, या few pounds left. जब करेंसी आपने काउंटेबल कर दी ना, तो फिर आप few यूज करोगे. लेकिन अगर मनी का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, देन आप लिटिल या a little यूज करोगे, अनकाउंटेबल में आ जाता है. जी उष्पा, नंबर 6, sorry, number 7. As she didn't speak clearly, dash people understood what she said. Few people understood what she said. Very good. Few people understood what she said. क्योंकि वो उसने clear बोला नहीं, तो बहुत कम लोगों को उसकी आवाज समझ आई. जी तंजीला, number 8. Dash people will admit their fault. A few people will admit it. A few या few? A few. A few जो है वो positive sense में है, याद रखिए. जी, a few. क्या सब लोग अपनी गलती मान लेते हैं? Do people admit their faults? Normally तो अपनी fault नहीं मानते लोग. Few people will admit. Few people. Few Yes, people will few admit. people will admit their fault. Few people will admit their fault. Bilal Manzoor, beta, you are next. Number 9. We must save dash money for our journey home. A little. We must save a little money for our journey home. Manzoor, Bilal, आपसे यही question थोड़ा सा मैं different way में पूछूंगी. We must save dash rupees for our journey home. Little हो जाएगा मेरे फिर. नो बेटा, little नहीं होगा. गौर से सुनिए. We must save dash rupees for our journey home. A few. A few rupees. Very good. Very good. ठीक है, वो countable हो गया. Rupees countable हो गया, इसलिए आपने few और a few में से use करना है. Money uncountable है, तो little. मैंने कल की लास्ट ली थी, वो सिर्फ मैंने हाफ क्लास ली थी, इस वजह से श्योर है. मैंने रिकॉर्डिंग की है, मैं हाफ दे दूंगा. ओके. एंड 9 में आपने क्या बताया? लिटिल आएगा और लिटिल आएगा? A little. क्योंकि आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है कि हमें थोड़ा मनी सेव करना है ताकि हमारी जर्नी वापसी की हो सके. सो अ लिटिल. नाउ डूअर ऑफ द एक्शन को आप पर्सन्स भी कहते हो अगर वो एक लिविंग थिंग हो. ठीक है, और पर्सन्स बेसिकली 3 किस्म के होते हैं, जिसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, ये सिंगुलर्स भी होते हैं और प्लूरल्स भी होते हैं. नाउ इफ यू ऑल ऑफ यू जस्ट लुक एट मी and let's see किस तरह से persons को हम define कर सकते हैं. First person is you yourself. ठीक है, पहले हम singulars को देखते हैं. I is the first person. So first person singular is I. Then the second person is you. I, first person. You is second person. He, she, it is third person. There's somebody else. He, she, it. That's the third person. All of these are singulars. I repeat. First person singular, I. Second person singular, you. Third person singular, he, she, it. Okay. Next, plurals में आ जाते हैं. I अगर plural करना है, we. We. First person plural. You जो है वो it remains the same. English language में you जो है वो सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है. यानी सेकंड पर्सन जो होता है सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है. यू किस तरह सेम रहता है? अगर मेरे सामने एक है, फॉर एग्जांपल उशबा इज देयर, आई से यू. बट इफ आई से उशबा, तंजीला, एमन, ऑल ऑफ देम आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी, आई वुड स्टिल से यू, इवन दो 3 लोग हैं मेरे आगे. ठीक है, सो इंग्लिश लैंग्वेज में सेकंड पर्सन जो है वो सेम रहता है सिंगुलर और प्लूरल. सो फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, प्लूरल हो गया, बहुत सारे लोग हैं वी. Second person plural, you, or third person plural, they. They. I repeat. Let's look at it once again. Singulars देख लेते हैं. I, first person singular. You, second person singular. He, she, it, third person singular. Plural पे आ जाते हैं. We, बहुत सारे. We,
first person plural, you second person plural, they third person plural. Is it clear? Now, why am I teaching you this? क्योंकि इसके साथ ही सारा कुछ रिवॉल्व करता है टेंसेस का. ठीक है, कहां पर वर्ब के साथ एस लगेगा, कहां पर नहीं लगेगा, कहां पर हैव लगेगा, कहां पर हैज लगेगा, कहां पर वॉज लगेगा, कहां पर वर लगेगा, कहां पर इज लगेगा, कहां आर लगेगा. ठीक है, कहां पर डू लगेगा, कहां पर डज लगेगा. ठीक है, सो ये आपको याद होने चाहिए, ये जो पर्सन्स हैं. ठीक है, कि सिंगुलर, प्लूरल और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन. नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है, दे आर वर्ब्स. यस्टरडे एज वेल वी डिस्कस दीज वर्ब्स. आपने कहा था एक्शन वर्ड्स होते हैं, बट दे आर बेसिकली स्टेट ऑफ, दे शो स्टेट ऑफ बीइंग एज वेल. ठीक है, सो दो किस्म के, या आप कह सकते हो 3 किस्म के वर्ब्स होते हैं. मॉडल ऑक्सिलरीज भी होते हैं, बट मेन वर्ब्स होते हैं, दे आर डायनेमिक वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स. ठीक है, डायनेमिक मींस जो शो करते हैं एक्शन, स्टेटिव जो मींस स्टेट को शो करते हैं. नो नीड टू गो इनटू दैट मच डिटेल, जस्ट याद रखिएगा मेन वर्ब्स होते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स. टेंसेस में हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स पे फोकस करना है. सो व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स? दे आर हेल्पिंग वर्ब्स. कैसे हेल्पिंग वर्ब्स? ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन अ नंबर ऑफ अदर वेज. लेकिन पहले देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स होते किन 3 कैटेगरीज के और वो कौन कौन से होते हैं. Now, auxiliary verbs are divided into 3 groups. कौन से 3 groups? To be, to have, and to do. To be, to have, and to do. और इन तीनों ग्रुप्स में कौन कौन से auxiliary verbs आते हैं? Let's look at the first one. To be में आता है am, is, are, was, were, been, being, and will be. ये सारे टू बी में, ये आपको याद करने होंगे. थोड़े से इन चीजों को जो है आप नोट डाउन भी कर लो. टू बी में ये सारे वर्ड्स ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं. नेक्स्ट इज टू हैव. इसमें आता है हैज, हैव, हैड, हैविंग, विल हैव. एंड थर्ड कैटेगरी इज टू डू, जिसमें आता है डज, डू, डिड, विल डू. So these are the 3 categories of auxiliary verbs. What are auxiliary verbs? Auxiliary verbs are helping verbs which help the main verb, और ये help करते हैं tense को determine करने में. और ये basically 3 categories के होते हैं: to be, to have, and to do. The list is on the screen. Just take a couple of seconds. इसको थोड़ा सा आप study करो. Okay. So first चीज हमने पढ़ी थी persons. ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था I, you, he, she, it. फिर हमने पढ़ा we, you, and they. ठीक है, नेक्स्ट चीज हमने कर ली ऑक्सिलरी वर्ब्स. नाउ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब किस पर्सन के साथ जाएगा, इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है, इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट क्या है? जो पर्सन हमने पढ़े थे. ठीक है, वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स. MEN, men. तो हमने वॉक कहा, वर्ब को हमने सिंगुलर कर दिया. गॉट इट नाउ? जी बेटा, कुछ समझ आ रहा है? I need a little bit of response so that I can continue. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So first हमने पढ़ी कि he, she, जबकि let's come to the lower one, I, you, we, they, और जितने भी plural subjects हैं उनके साथ singular verb लगता है, उनके साथ no s और es. ठीक है, you speak, we drive, they ran, the men dance. ठीक है, the students play. ठीक हो गया? तो इनके साथ हमने s और es नहीं यूज किया. This was the first one. सेकंड पे आ जाते हैं. किस चीज का इस्तेमाल है? does का and do का. फर्स्ट बबल में does का इस्तेमाल होगा, सेकंड में do का इस्तेमाल होगा. किस तरीके से? कैन एनीवन मेक अ सेंटेंस फॉर मी? फर्स्ट बबल में किस तरह does का इस्तेमाल होगा और सेकंड में do का? एनीवन? Yes, she does her work. She does her work. जबकि लोअर बबल से लीजिए, They do their work. they do their work. Very good. इसी तरीके से क्वेश्चन भी बना सकते हैं. क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? Does she speak English? Work hard.
डज शी, अब ये याद रखिएगा कि जब डज आ जाता है तो वर्ब के साथ फिर एस और ईएस रिमूव हो जाता है। नॉर्मली आप कहते हो शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, लेकिन जब आप उसको इसमें डज का इस्तेमाल कर लेते हो, डज शी स्पीक इंग्लिश, तब आप एस और ईएस रिमूव कर दोगे वर्ब के साथ। सो डज शी स्पीक इंग्लिश, डज का इस्तेमाल हुआ। लोअर में से देख लेते हैं, लोअर बबल में से डू दे स्पीक इंग्लिश, लोअर में डू का इस्तेमाल हुआ। डू यू, डू वी, डू दे, डू द स्टूडेंट्स, डू द टीचर्स, ठीक है, डू द टीचर्स टीच इंग्लिश वेल, डू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, डज द स्टूडेंट वर्क हार्ड, अगर सिंगुलर है तब डज होगा। डज द टीचर टीच इंग्लिश। जी बेटा। मैम ये जो ऊपर वाला जो प्लूरल वर्ड्स है, इसमें जो वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में ये जो वाई होते हैं, वाई आते हैं, जैसे हम लोग फिर उसको रिमूव करके आई एस लगाते हैं, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दे आप। जैसे एस एस, हाँ एस, बिल्कुल एस और ई एस लगता है। अब जरूरी तो नहीं है कि वाई, जैसे फॉर एग्जांपल प्ले है तो प्लेज सिंपल एस भी लग सकता है, ठीक है। ये मैं आपको इसको स्टडी करके आपको बता दूंगी कि कहाँ पर एस के साथ वाई के साथ जो है उसको रिमूव करके आई एस, ये नॉर्मली जब आप प्लूरल्स बनाते हो तब यूज किया जाता है। वर्ब्स के साथ तो नॉर्मली एस या ई एस किया जाता है, ठीक है। वो आप नाउन्स को जब जैसे बेबी हो गया बी ए बी वाई, तो बी ए बी आई ई एस, वो आप जब प्लूरल बनाते हो वो नाउन्स को उसमें इस्तेमाल होता है। वर्ब्स के लिए तो नॉर्मली एस और ई एस यूज किया जाता है। मैम जैसे फ्लाई के लिए, अभी हम फ्लाई के लिए किस एस को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे या ई एस को? अभी फ्लाइज तो वाई को, तो उसके लिए भी उसमें मैम आई एस इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, I'll check that. This is a good question. Let me confirm that and I'll let you know. ठीक है। What's your name बेटा? ओके मैम, हिकमतुल्लाह। हिकमतुल्लाह, ठीक है, ये इसको कंफर्म करके आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके ओके, सो नेक्स्ट वन जो है डज और डू हमने किया, इसका पास्ट भी होता है, एंड व्हाट इज द पास्ट ऑफ इट? डिड, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि डिड ऊपर के बबल में भी यूज होता है, नीचे में, तो इसमें आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक चीज नोट डाउन करें एंड राइट डाउन इन बिग अल्फाबेट्स इन योर नोटबुक। यूज फर्स्ट पर्सन, use first form of the verb, used first form of the verb with did. Use first form of the verb with did. और इसी के नीचे लिखिए use third form of the verb with has, have and had, और इसको जरा बोल्ड करके हाईलाइट कर लें। did के साथ कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और has, have, had के साथ कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। This is one mistake which many people make. Even English teachers make this mistake कि did के साथ they use second or third form. अक्सर third form use करते हैं, ठीक है। पहले shall use किया जाता था, लेकिन will is now used with both. और अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो I'll tell you the difference between will and shall. जी वकास and तैयबा, you have questions? Please go ahead. मैम आई प्लूरल्स में क्यों यूज करते हैं? आई प्लूरल्स में मैंने ये तो नहीं कहा आई प्लूरल्स में यूज होता है। मैम ये प्लूरल्स के बबल में है ना, तो मतलब आई तो सिंगुलर है। याद रखिएगा बेटा, ये याद रखिएगा कि जो लोअर बबल है इट्स नॉट अ बबल ऑफ प्लूरल्स, ठीक है। इट्स नॉट अ बबल ऑफ प्लूरल्स। या इसमें मैंने कैरेक्टराइज जो कैटेगरीज जो किए हैं वो इसलिए किए हैं ताकि जो राइट साइड पे एक्सप्लेनेशन है वो डिवाइड हो सके, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ऊपर का बबल है तो सिंगुलर्स का, ठीक है, बट लोअर वन इज नॉट ऑल प्लूरल्स। इसमें यू भी सिंगुलर हो सकता है प्रोवाइडेड कि सेकंड पर्सन आप सिंगुलर की बात कर रहे हो, ठीक है, और यू प्लूरल भी हो सकता है। आई का एक्सेप्शन है, आई के साथ आप एम यूज करते हो, वॉज यूज करते हो, और इंटरेस्टिंगली आई के साथ वर्ब भी यूज किया जाता है। वी विल बी डिस्कसिंग दैट जब हम कंडीशनल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो हम उसको उस टाइम पे करेंगे। जी वकास। मैम ये अक्सर सेंटेंसेस में देखते हैं कि हैज हैड और हैड हैड, मतलब ये किस केस में यूज होता है जिसमें दोनों यूज? वी आर गोइंग टू हैव अ फुल कंप्लीट लेक्चर ऑन दिस। अभी जो मैंने तैयबा को भी कहा कि जब हम कंडीशनल्स पढ़ेंगे सो उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर डबल हैड लगता है
कहाँ पर have के साथ had लगता है, ठीक है, I have had my breakfast, ठीक है, या let me explain it a bit. Actually has, have, had जो है, sorry, have और had जो है वो उसके यूजेज होते हैं, 3 डिफरेंट यूजेजेस हैं. एक तो ये हो गया कि इट्स एन ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, अभी जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, बट इसके 2-3 मीनिंग्स और भी हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल विकास, इफ आई से टू यू आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, यहाँ पे हैड का क्या मतलब हुआ? इट्स नॉट एन ऑक्सिलरी वर्ब, इट्स अ मेन वर्ब एंड इट मीन्स दैट आई हैव जस्ट ईटन माई ब्रेकफास्ट, ठीक है. आई जस्ट हैड टी, यहाँ पे had जो है इट्स अ मेन वर्ब which means I just drank my tea. तो had का क्या मतलब हो गया? drink के हवाले से हो गया, ठीक है. In 1986 I had a house or I had a car. इसमें क्या मतलब हुआ? I had, यहाँ पे भी auxiliary verb नहीं, it's a main verb, ठीक है. यहाँ पर had का मीनिंग हो गया पोजेशन का, कि आई पोजेस्ड, मेरी एक हाउस में मुझे बिलोंग करता था, आई पोजेस्ड, आई वाज ओनर ऑफ अ हाउस, ठीक है. सो बेसिकली हैड जो है इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज एज अ मेन वर्ब, ड्रिंक के हवाले से, ईट के हवाले से और पोजेस करने के हवाले से. पोजेस मीन्स कोई चीज आपकी पोजेशन में हो, ठीक है. सो उससे उस हवाले से जब आप यूज करते हो तो एक आ जाता है, पहला हैड आ जाता है आपका ऑक्सिलरी और सेकेंड हैड आ जाता है आपका मेन वर्ब जो आप ईट, ड्रिंक या पोजीशन के लिए यूज कर रहे हो. दैट्स व्हेन 2 हैड्स आर यूज्ड, ठीक है. बट वी विल हैव अ कंप्लीट लेक्चर ऑन दिस, उस पे मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी बनाई है. सो जैसे ही हम टेंसेस कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक ही कंडीशनल्स का, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक हो गया? ऑलराइट, ओके मैम, थैंक यू. Let's continue with this subject verb agreement जो है हमने अभी की है, and let's start with the tenses. इसमें मैं बहुत सारा आप लोगों को involve करूंगी, so I would ask you to make sentences and we'll quickly go through this, ठीक है. Let's discuss the first one. This is called, the first one is the present tense, जिसके 4 aspects हैं, जैसे मैंने आपको बताया. Simple, जिसे indefinite भी कहते हैं, continuous, जिसे progressive भी कहते हैं, then you have perfect and perfect continuous. Now formulas are given on the screen. What is the formula? Simple tense देखिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब है और वर्ब के साथ एस और ईएस है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, सॉरी, वर्ब के साथ एस और ईएस है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. एस और ईएस किस पे डिपेंड करता है? ये देखिए स्क्रीन पे, सब्जेक्ट पे. अगर फर्स्ट बबल का है तो फिर एस और ईएस लगेगा, अगर सेकंड बबल का सब्जेक्ट है सो नो एस और ईएस, ठीक है. सो इसी तरीके से साथ आप डज और डू यूज कर सकते हैं. वो कब होगा, कैसे पता चलेगा डज यूज करना है या डू? अगर तो सब्जेक्ट पहले बबल में से है, सो यू आर गोइंग टू यूज डज. कैन यू सी द कर्सर? यस मैम, कैन सी. ओके, और अगर वो सेकंड बबल में से है तो आप यूज करोगे डू. साथ कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो पहले देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he speaks, she dances, ये अभी मैंने जिस तरह से कहा, और इसी को जब आप does के साथ इस्तेमाल करते हो तो does she speak English, ठीक है. does he work hard, ठीक हो गया. और इसी तरीके से do का इस्तेमाल कर दें, do they play cricket, ठीक हो गया. सो इसको हम कहते हैं सिंपल टेंस, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है. जिसमें डू और डज होता है वो भी सिंपल टेंस होता है. नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसी को? फर्स्ट वाला जो है वो देखिए, सब्जेक्ट के साथ आप डू और डज यूज करके नॉट का इस्तेमाल करोगे. फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट. सो कीप इन माइंड कि नाउ आजकल जो है इंग्लिश लैंग्वेज में जो चेंजेस आई हैं, अब हर एक सब्जेक्ट के साथ आप विल यूज कर सकते हो. ही, शी, इट, दे, आई, यू, प्लूरल, सिंगुलर, सबके साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन क्या डिफरेंस होता है शैल और विल में? शैल और विल में, जिसे जसेफ फ्यूचर कहते हैं, इसमें डिफरेंस ये होता है कि शैल में थोड़ी सी वीकनेस होती है, विल में स्ट्रेंथ होती है, ठीक है. शैल में वीकनेस किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, यू आस्क मी मैडम विल यू हेल्प मी, ठीक है, एंड आई से आई विल हेल्प यू, मीन्स कि आई एम डिटर्मिन्ड टू हेल्प यू. मैं बड़ी स्ट्रांगली ये बात कह रही हूँ कि आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प. But if I say I shall help you,
हो सकता है कि मैं आपकी मदद यहाँ भी करूँ, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट विद टू मच डिटर्मिनेशन, थोड़ा सा मैं वीक वे में कह रही हूँ कि शायद हो सकता है कि मैं आपकी मदद ना भी करूँ, ठीक है। सो इसमें बेसिकली वीकनेस और स्ट्रेंथ की बात आ जाती है। कीप इन माइंड कि शैल जो है वो सजेशंस के लिए भी यूज होता है। शैल वी गो फॉर अ वॉक, ठीक है, शैल वी हैव टी और शैल वी हैव टी, ठीक है। सो सजेशन के लिए भी आप शैल का इस्तेमाल करते हैं। एनी क्वेश्चंस सो फार? नो मैम। नो। सो लेट्स हैव अ शॉर्ट एक्सरसाइज जहाँ पे शैल जो है वो सजेशंस के लिए यूज होता है। कीप इन माइंड कि इन 4 सेंटेंसेस में जो पहला सेंटेंस दिया गया है उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हंग्री एंड इट इज लंच टाइम, तो आपने क्या सजेशन देनी है? शैल, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 2, इट इज नॉइजी बिकॉज द डोर इज ओपन, आप चाह रहे हो कि डोर को क्लोज किया जाए, तो आप किस तरह से सजेशन दोगे? शैल बी, शैल आई, और आगे आप उसको यस। सो क्वाइटली डू नंबर 1, 2, 3 एंड 4। कॉन्टेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सजेशन आपने देनी है शैल के इस्तेमाल के साथ। Okay, let's do it together. Salma, can you hear me? Is it Salma or Saima? Saima. Saima, can you hear me? Saima Shabir. Yes, ma'am. Okay, Saima, let's do number 1. I am hungry and it is lunch time. Can you give me a suggestion with shall? Shall I eat something? Shall I eat food? Shall I eat food? Or shall we go for lunch? Okay, Shall I bring something? Okay. Shall I bring something to eat? Very good. Ji Pakiza. Number 2, it is noisy because the door is open. So, आपने क्या suggestion देनी है? By the way, the pronunciation of suggestion, जो हम बचपन से suggestion कहते हैं, it's basically suggestion. ठीक है? Even I got to know this in my college. So sometimes you learn things very, later on in your life. Ji Pakiza, number 2. Ma'am, it is noisy because the door is open. Shall I close it? Very good. Shall I close it or Shall I close the door? Very good. Very good. Shavez, number 3. That music makes me feel like dancing. Shall I dance? Shall I dance? Shall we dance? Shall we dance? ठीक हो गया. Number 4. Let's see who's going. Yes, Taiba, number 4. I'd love a cup of tea. Shall I have some? Yes. Shall we have a cup of tea? Shall I have a cup of tea? Shall we order a cup of tea? Shall we have tea? ठीक है, तो इसको हम shall को हम suggestions में भी use करते हैं. All right, so this was regarding the tenses, and we'll be doing some exercises tomorrow as well. If we have a class tomorrow, we'll see. And we'll continue with this, or the next topic we'll be covering would be conditionals. Now keep in mind, conditionals are very important from your exam point of view. Okay? There are basically 4 kinds of conditionals: conditional type 0, type 1, type 2 and type 3. और हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे that they are very much clear to you. और साथ में ही we'll be doing the usage of double hands. किस तरीके से आज मैं थोड़ा सा आपको इसको explain किया है. And we'll be doing a number of exercises on that as well. So I hope that things are clear. Oh yes, Friday is off, so not tomorrow. We won't have a class tomorrow, but inshallah, jab bhi next class hogi, so we'll be covering conditions. So any questions? If you have any questions? Excuse me, ma'am. जी बेटा. Excuse me, ma'am. मैम मैंने पूछना था वो कि आप लिंक बता दें कोई जहाँ से हम एक्सरसाइज डन कर सकें, इस तरह से हमारी प्रैक्टिस हो जाए, या आप ग्रुप में सेंड कर दें इस तरह से एक्सरसाइज. इस तरह से कोई लिंक तो नहीं है. There are many गूगल पे आप टाइप करें तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी. कीप इन माइंड, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो देखा करो कि उसका की होनी चाहिए, या उसका जो ऑटोमेटिक आंसरिंग सिस्टम है कि मतलब वो जो आपके आंसर को रिप्लाई वो करते हैं, चेक करता है, वो होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि कहाँ आपने मिस्टेक की है. Besides that, there is one very good book. It's called How English Works. How English Works.
तो उसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं, अगर वो आपको मिलती हैं या इवन अगर वो सॉफ्ट में अवेलेबल है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। रेन एंड मार्टिन इज गुड एज वेल, बट आई वुड से कि CSS लेवल की नहीं है, बट ठीक है, आप एक्सरसाइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं तो गो अहेड विद इट। रेन एंड मार्टिन इज गुड एज वेल, ठीक है। ये तौसीफ वाज आस्किंग दिस somebody. Okay, so thank you very much. Inshallah, I'll see you in the next class. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.